اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب لئیق احمد صاحب کرسپونڈنٹ دین ہل اکیڈمی اسکول، جناب مولانا عبدالحبی عمر صاحب، جناب مولانا وجیہ الدین صاحب، عزیز طلباء و طالبات اور ان کے ذمہ داران، محترم اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اسکول میں اور ہمارے محلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہمیت والا پروگرام ہے جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو یہاں بلا کر اس چیز کی اہمیت بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیم کس طرح دی جائے، بچوں کا فیوچر کیسا ہو تو بہتر رہے گا۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا لئیق صاحب کو کہ انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ جی، آج کا عنوان ہے ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس ان چلڈرنس ایجوکیشن اینڈ اپبرنگنگ۔ اس عنوان کو میں 3 حصوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حصہ میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے، واٹ از دی نیڈ فار، واٹ از دی امپورٹنس آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے۔ دوسرا حصہ ہم بات کریں گے واٹ از دی امپورٹنس آف کوالٹی ایجوکیشن، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے اس میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے دین ہماری شریعت کے حساب سے۔ تو پہلی چیز تو امپورٹنس آف ایجوکیشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف جگہ علم کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں تھی جو سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ پہلا ورڈ اقرأ، ریڈ، پڑھو۔ اس بات سے ہمیں اندازہ لگتا ہے، میں دوسری آیتوں کی طرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ملے گا، یہاں مولانا موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اس پر زیادہ روشنی ڈالیں، مگر سب سے پہلی قرآن شریف کی جو آیت ہے، وہ کتاب جو ساری عالم کے لیے نازل ہوئی، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے قائم رہے گی اور تمام انسانوں کے لیے ایک راہ دکھاتی ہے، راہ سیدھی راہ دکھانے والی جو کتاب ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا گیا، پہلی آیت، پہلا ورڈ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت اسلام میں کس طرح بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو جو علم رکھتا ہے اور جو انجان ہے دونوں ایک جیسے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان جس کے پاس علم ہو اور ایک انسان جس کے پاس علم نہ ہو، وہ بالکل بھی خطاً برابر نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اس آیت میں اس کا بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم احادیث کریمہ کا جائزہ لیں تو آپ سب نے سنا ہوگا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ 40 حدیثوں میں بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، ہم بار بار یہ حدیث سنتے ہیں، اس میں بھی علم کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو میں آگے لے کے بات کروں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس حدیث کے ضمن میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پہ جب بات علم کی آتی ہے تو اکثر لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ اس میں دینی علم کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو 7ویں سینچری کی بات ہے، 615 630 اس کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت چین میں تو کوئی دین نہیں تھا، چین تک تو ابھی اسلام نہیں، ابھی کچھ پہنچ رہا تھا، وہاں تو دین کے علم کی کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی۔ تو کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے؟ اس کی وجہ صاحب یہ ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دینی علم کی طرف نہیں تھا مگر دنیاوی علم کی طرف تھا، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہوتی ہے، جو مورل ایجوکیشن ہوتی ہے، جو سائنس میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف تھا۔ اس زمانے میں چین دنیا کا ایک سپر پاور تھا۔ یہ چین کی جو سویلائزیشن ہے بہت پرانی، 5000 7000 سال پرانی سویلائزیشن ہے۔ اس طرف بھی چین، اس وقت بھی چین ایک بہت ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، میں بہت اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوتی رہتی ہے، پیرنٹ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے،
बोलते हैं अच्छा कॉलेज डालना है, अच्छा कॉलेज कहाँ है भाई, थोड़ा दूर है, 10-15 किलोमीटर है, बंजारा इसमें है, फलां है, इतनी दूर कहाँ भेजना भी बच्चे को। गूगल, वो बताइए चीन जाने की बात हो रही है, चीन हिंदुस्तान से फिर भी शायद थोड़ा करीब है, मगर अगर आप सऊदी अरब, आज का जो अरब है, मदीने, मक्के और मदीने से अगर उसका फासला देखें तो काफ़ी दूर है। मदीना तो हमको, मक्का मदीना तो हमारे वेस्ट में आता है, चीन तो नॉर्थ में है, तो ये बहुत दूर है। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वहाँ तक जाओ। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ जहन में बात आती है कि ये बात के इतनी दूर क्यों भेजे बच्चे को पढ़ने के लिए। हाँ, लड़की है, जाने आने का कोई इंतज़ाम नहीं है तो अलग बात है, मगर हमारे बच्चों को तो हम कोशिश करें कि जो है जहाँ बेहतरीन तालीम मिलती हो वहाँ उनको भेजने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग, जब मैं बात करता हूँ बच्चों को IITs में जाना चाहिए, IIMs में जाना चाहिए, तो बोलते हैं भाई IIT के कॉलेजेस हैदराबाद में नहीं है। अब थोड़े दिन पहले शंकरपल्ली में एक IIT ओपन हुआ, IIM तो अभी भी नहीं है। लोग बोलते भाई बच्चे को उतनी दूर क्यों भेजना पड़े। अरे भेजना भाई, हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और उसके ताल्लुक से मैं आगे भी बात करूँगा आपसे। जो मैंने आपसे कहा था कि दूसरा हिस्सा, इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिट एजुकेशन, तो अभी मैंने जिक्र किया IIT IIM का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरे हिंदुस्तान में 8-10 कॉलेजेस हैं, ओनली 8 to 10 कॉलेजेस इन द होल कंट्री, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। तो आज के वक्त की ये ज़रूरत है कि हम कोशिश करें हमारे बच्चे सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, तभी वो बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे, उनको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, और फिर वो आगे, जब आगे चढ़ेंगे अपने फ्यूचर में भी तरक्की उसी तरीके से करेंगे। चुनांचे हम लोग बहुत सारे नाम सुनते हैं आजकल कि माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडिया से है, गूगल का CEO, अल्फ़ाबेट का CEO इंडिया से है। ये सब कहाँ से पढ़े? ये सब IITs और IIM की तालीम याफ्ता है। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ की तरफ अपना जहन लड़ाएं कि मेरे बच्चे किस तरह इन बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल कर सकें। इस चीज़ की हमेशा कोशिश करें। इसके लिए जैसे अभी तो मैं समझता हूँ यहाँ जो भी वालिदैन हैं 4th to 8th क्लास के हैं, बताया गया है, तो अभी से इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं अपने दोस्तों से, मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ, तो जब मेरी इनसे बात होती है तो बताते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं वो बताते हैं कि भाई 7th क्लास से IIT ट्रेनिंग दे रहे हैं, 7th क्लास से IIT की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। हालांकि IIT का जो IIT JEE एंट्रेंस होता है वो इंटरमीडिएट के बाद होता है, मगर 7th क्लास से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब सोचिए हम, क्या हमारा जहन भी इस तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है? हमारा मजहब हमें कहता है, दूसरे मज़ाहिब की किताबों में निकाल कर देखें, और अगर आप बता देंगे तालीम की तरफ इतनी अहमियत बताई गई है तो मैं आपकी बात मान लूँगा। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें तालीम की अहमियत बताई गई है, मगर फिर भी देखिए उस मजहब में जिसमें तालीम की इतनी अहमियत है, हमारा जहन बेहतरीन तालीम की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? आजकल हमारा जहन हो गया कि बच्चों को स्कूल भेज दिए, ट्यूशन लगा दिए या कॉलेज भेज दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, उसमें भी क्या हो रहा है, स्कूल तो भेज रहे हैं, मगर ऐसा हो रहा है कि एक जिम्मेदारी खाना पूरी कर रहे बताते ना, स्कूल भेज दिए, खत्म, दावत आई, स्कूल को लेट आ रहा बच्चा, 4-4 घंटे शादी में चले जा रहे हैं, फलाना का रस्म है, हलेरे बहन के बच्चे का रस्म है, 4 घंटे रात में 12 बज के 1 बज के सुबह बच्चे उठाए नहीं, आप स्कूल नहीं भेज रहे। तो इन चीज़ों की तरफ जरा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दौर है जब हमारे बच्चों को इल्म हासिल करना है। इन सब चीज़ों के लिए वक्त बाद में मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि ये सब बेजा चीज़ें हैं, जो बेजा रसूम हैं, उनमें बड़े शरीक हो तो हों, बच्चों को इनसे दूर रखें, ताकि बच्चों की जो है पढ़ाई की तरफ से तवज्जो ना हटे। दूसरी बात, मैं मेरिट एजुकेशन की आपसे बात कर रहा था कि मेरिट एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले तो जब हमारे बच्चे 10th पास करते हैं, जब 10वीं जमात पास करते हैं, तो तब तक अगर हमारे बच्चों का जहन बन जाए कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमारा गोल क्या है, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है आगे का कोर्स डिसाइड करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं खुद अपनी बात करूं, तो शायद मैं जब 8th और 9th क्लास में था कि मेरे जहन में आ गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस वक्त इंजीनियरिंग बहुत महंगी भी थी और ज़्यादा लोगों को सीट्स मिलते भी नहीं थे। फिर भी पता नहीं किससे सुना था, वो याद भी नहीं है, मगर एक जहन में आ गई थी बात की, एक गोल बन गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। और उसी तरीके से मैंने कोशिश की, पता किया। उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी जितनी आज मालूमात लोगों में है, उस वक्त नहीं था। फिर भी असातिज़ा से पूछा और जो बड़े थे उनसे पूछा,
पता चला कि भाई आपको एमसेट लिखना पड़ता है, मगर इस पर आदमी की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, कोशिश करें कि वो बेहतरीन तालीम हासिल करें और जो भी उनको स्कूल में काम दिया गया है, जो होमवर्क दिया गया है, वो अच्छी तरीके से करें और उनको एक कोशिश करें कि ही शुड बी द फर्स्ट इन द क्लास, राइट, ही शुड बी द फर्स्ट, सबसे आगे वो मेरा बच्चा ये कोशिश करें। और अगर वो भी ना कर सके तो कोशिश करें कि उसको 100 से 100 आए, 100 से 90 आए कम से कम, यहाँ तक तो ले। हो सकता है रैंकिंग सिस्टम में कुछ लोग एतराज़ करते हैं, मगर ये तो कोशिश करें कि मेरा बच्चा 90% तो इल्म इसके जहन में जा रहा है। अगर ये लेवल पे आपका बच्चा 90% ला रहा है, तब ये बच्चा जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जब तालीम और डिफ़िकल्ट होती जाएगी, तो उसका परसेंटेज आमतौर पे कम होता है। तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, की तरफ तवज्जो दें, स्कूल वालों का साथ दें, स्कूल वाले जहाँ कोशिश कर रहे हैं वहाँ उनके साथ कोऑपरेट करें, बच्चों को वक्त पर स्कूल को भेजें, ये देखें उनकी पूरी जिम्मेदारी से कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास के बहाने कुछ और कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बहैसियत वालिदैन हम पर आयद होती हैं। चंद बातें थी मैं आपके सामने मैंने आपके सामने रखी, कुछ तैयारी तो नहीं थी, लईफ भाई का खुलूस है कि हम यहाँ आकर ठहर गए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लईफ साहब का कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमें अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर जितने बच्चों करना चाहिए उतने नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो एवरेज बच्चे हैं जो हमारे पीछे रह जा रहे हैं, ये बच्चे भी आगे आएंगे अगर वालिदैन इनको थोड़ा कोशिश करें, इनके पीछे इनको पुश करें। और मैंने ये देखा है कि जैसा मैंने पहले बताया कि आमतौर पर बच्चों से और उनके वालिदैन से मेरी बहुत बातचीत होती रहती है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो बच्चे आगे तालीम में आगे बढ़ते हैं जिनके माँ और बाप दोनों पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। अक्सर उमूमन हमारे घरों में देखा जाता है कि वालदा ही बच्चों को बोलते पढ़ो, होमवर्क कर लो, ट्यूशन को भेजो, वालदा ही जो है स्कूल के चक्कर काटते हैं, वालिद बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के एजुकेशन में। वो लोग समझते हैं भाई फीस बंदी है, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तुम देख लो। खैर जब तक बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, बहुत ज़्यादा हो गया क्या? जो लोग फर्स्ट क्लास बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो ये बात समझ में आती है, बट जैसे ही बच्चा बाहर निकलने लगे उसके बाद ये वालिद की जिम्मेदारी हो जाती है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को अपने घर का राई बनाकर भेजा है और अपने घर वालों के बारे में उससे पूछोगे। राई का मतलब क्या है? राई का अगर लफ्ज़ी माने देखें, और मौलाना दुरुस्त करे अगर कुछ गलती हो तो, राई के अगर लफ्ज़ी माने देखें कि जो चरवाहा होता है, जो बकरियों को चराने लेके जाता है, उसको राई कहा गया है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो भेड़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ लेकर जाए और उनको वापस अपनी जगह लेकर आए, उनको खिला पिला। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, फैमिली का एक निज़ाम बनाया है, इसमें मर्द को ये जिम्मेदारी दी है कि उसके बारे में पूरे तमाम घर वालों की जिम्मेदारी उसको दी है और उससे उनके बारे में आखिरत में पूछोगे। तो बहैसियत वालिद हमारी ये जिम्मेदारी है, ये देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं, फ़ोन पे क्या कर रहे हैं। फ़ोन देख के छोड़ दिए, बच्चा समझ रहे हैं ऑनलाइन क्लास हो रही, मगर ऑनलाइन क्लास हो रही या बच्चा कहीं और वक्त ज़ाया कर रहा है, इसके बारे में आपसे पूछोगे। ऐसा नहीं है फीस बनती है, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। हदीस शरीफ बताया, मैं मुस्लिम और बुखारी शरीफ दोनों में है हदीस, सही हदीस है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास अपने बच्चों की और तमाम घर वालों की जिम्मेदारी मर्द पर आयत होती है। बेशक वालिदैन भी उनको तालीम दें, उनकी तरफ तवज्जो दें, मगर इस पर आदमी की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, कोशिश करें कि वो बेहतरीन तालीम हासिल करें और जो भी उनको स्कूल में काम दिया गया है, जो होमवर्क दिया गया है, वो अच्छी तरीके से करें और उनको एक कोशिश करें कि ही शुड बी द फर्स्ट इन द क्लास, राइट, ही शुड बी द फर्स्ट, सबसे आगे वो मेरा बच्चा ये कोशिश करें। और अगर वो भी ना कर सके तो कोशिश करें कि उसको 100 से 100 आए, 100 से 90 आए कम से कम, यहाँ तक तो ले। हो सकता है रैंकिंग सिस्टम में कुछ लोग एतराज़ करते हैं, मगर ये तो कोशिश करें कि मेरा बच्चा 90% तो इल्म इसके जहन में जा रहा है। अगर ये लेवल पे आपका बच्चा 90% ला रहा है, तब ये बच्चा जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जब तालीम और डिफ़िकल्ट होती जाएगी, तो उसका परसेंटेज आमतौर पर कम होता है। तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, की तरफ तवज्जो दें, स्कूल वालों का साथ दें,
اسکول والے جہاں کوشش کر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، بچوں کو وقت پر اسکول کو بھیجیں، یہ دیکھیں ان کی پوری ذمہ داری سے کہ بچے ہوم ورک کر رہے ہیں یا آن لائن کلاس کے بہانے کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بحیثیت والدین ہم پر عائد ہوتی ہیں. چند باتیں تھی میں آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھی. کچھ تیاری تو نہیں تھی، رئیس بھائی کا خلوص ہے کہ ہم یہاں آ کے ٹھہر گئے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں رئیس صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. شکریہ. خدا حافظ.